Welcome to all to this program on legal awareness for common man, organized by the School of Law on first and third Saturday between 4 to 5 p.m. Today, the topic taken for discussion is human trafficking issues and concern. Today, we have the very highly distinguished panel today. Let me introduce the panelists today. First of all, Ms. B. Bhamati, IAS, Additional Secretary, Ministry of Home Affairs, is with us. And she is a very senior IAS officer. She worked earlier with the UNICEF, UNDP and UNFPA and other positions and all. Thank you very much, madam, for taking your time and coming over here to join in this discussion. We have another equally distinguished panelist, Dr. P.M. Noyer, presently Special Director General of Police, CRPF, and he has the unique distinction of working as the project coordinator with UNODC, and for wherein we developed this material on this human trafficking, on which he will be sharing with us. Welcome to you, sir, for the studio and our program. Okay. And also we have Mr. Ravi Kant, who is the president of the Sakti Vakini, and he is the leading NGO dealing with various issues including human trafficking. Many of us must have heard about him, seen him in the TVs for this signal. Welcome to all for this program. Human being, the life is very precious. Human life is meant for living with a dignity. The process of the law, although says that all are equal naturally, but for one reason or other, the human beings are not at all equal in all respects. In the sense, today I am sitting before you, I have a different background, circumstances. Likewise, each and every human being is been living in a different circumstances, environment. Perhaps that shapes each and every human being. In the process, some people are leading a very good, dignified life. Some people are not that lucky enough to lead a very, very distinct life. Today, the topic we are discussing, the human trafficking, we are going to talk about those people who are not that advantaged to lead a very, very distinct or life with liberty and dignity and all. Trafficking, that's people in the human trafficking. What is trafficking and what is human trafficking? And what is the reasons for this human trafficking? What are the causes for this human trafficking? Who are the people involved in this trafficking? Is it possible to prevent it? What are the remedial measures available to this? What is the procedure to be followed before or rescue and operations and all? And is it possible to resettle with the family members who have been rescued, all those things? These are the very, very burning issues that is facing the nation, and on this topic the panelists are going to discuss on various issues and all. To start with, let me request to Dr. P.M. Noyer, sir, what is human trafficking? Can you kindly explain to all our viewers? Human trafficking is the ultimate violation of human rights. मानव अधिकार का सबसे बड़ा उल्लंघन। हर मानव को अधिकार है, हर मानव को जीने का, रहने का और हर चीज का अधिकार है। इस अधिकार का उल्लंघन है, मानव अधिकार का उल्लंघन है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इसमें आदमी को, इंसान को एक कमोडिटी जैसे, एक सामान जैसे क्रय विक्रय किया जाता है। आप दुकान जाते हैं, कलम खरीदते हैं, पेन खरीदते हैं, मैं जाके सेल फोन खरीदते हैं, खरीदने के बाद उसको कोई बिक्री कर सकता है। जैसे ये कमोडिटी है, सामान है, इस सामान के जैसे इंसान को क्रय विक्रय करने का प्रक्रिया को ह्यूमन ट्रैफिकिंग बोलते हैं। आम भाषा में लोग इसको प्रोस्टिट्यूशन समझते हैं, वो गलत है। वास्तव में ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक इंसान को दूसरे इंसान क्रय विक्रय करके उससे फायदा उठाते हैं। बहुत चीज इसमें है, सिर्फ क्रय विक्रय से काम नहीं बनता है, उसको कोई फायदा उठाया तो किसी को बिक्री करने से दूसरे को फायदा हुआ, किसी को नुकसान पहुंचाने से, किसी को वायलेशन करने से, किसी का मानवाधिकार का उल्लंघन करने से, किसी का एक्सप्लॉयटेशन करने से, शोषण करने से दूसरे को फायदा होता है। इसी को ट्रैफिकिंग बोलते हैं। इसमें कई किस्म का ट्रैफिकिंग है। कुछ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए, यौन शोषण के लिए होता है, जैसे मैराथन में हुआ, मसाज पार्लर में, मसाज पार्लर के नाम पर करते हैं, बियर बार में करते हैं, टूरिज्म सर्किट में करते हैं। कई तरह का इस तरह का एक्सप्लॉयटेशन होता है। सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन जिसमें महिला भी है, छोटे बच्चियां भी है, लड़के भी होते हैं। तो कई तरह के एक्सप्लॉयटेशन, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है। दूसरे किस्म का एक्सप्लॉयटेशन है लेबर एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन माने कोई मजदूरी के लिए, बाल मजदूरी के लिए और बड़ों का भी मजदूरी के लिए एक्सप्लॉयटेशन कर सकता है। एक्सप्लॉयटेशन कई तरह का, लेबर एक्सप्लॉयटेशन इंडस्ट्रियल हो सकता है, एग्रीकल्चर एक्सप्लॉयटेशन,
एंटरटेनमेंट में, सर्कस में एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। इस तरह के कई प्रकार के एक्सप्लॉयटेटिव लेबर भी होते हैं। तीसरा किस्म है कि उनको ट्रैफिकिंग करके उनका अंग, उनका शरीर के पार्ट्स बेचने के लिए, जैसे किडनी सेल के लिए, हाँ, इस तरह के कई प्रकार के नए नए एक्सप्लॉयटेशन भी आना शुरू कर दिया। तो ओवरऑल देखेंगे तो दुनिया में ट्रैफिकिंग का कई प्रकार के पहलू हैं, कई प्रकार के एक्टिविटीज होते हैं, जिसमें बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है जिसको ट्रैफिकिंग बोलते हैं। थैंक यू सर। Now we will request Madam, can you kindly tell why has trafficking happen and what are the causes for trafficking? जैसे नायर साहब ने आपको इस संबंध में एक इंट्रोडक्शन के रूप में दिया है, ट्रैफिकिंग में ल्योर करके, डिसीव करके, फ्रॉड के आधार पर किसी को न जानते हैं कि हमको इस प्रकार के शोषण के स्थिति में ला रहे हैं, तो उनको कहेंगे कि भाई आपको नौकरी देंगे या आपको सिनेमा में ले जाएंगे, सर्कस में ले जाएंगे, इस तरह का। उनको ये पता नहीं होता है कि घर से किस कारण के लिए वो घर से निकल रहे हैं। वो इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे को लेकर के अगर हम विश्लेषण करें तो इसमें हु आर द पीपल वल्नरेबल टू ट्रैफिकिंग, इसमें अनेक माने मेजॉरिटी जो है इसमें विमेन, महिला और बच्चों की ट्रैफिकिंग होती है। तो महिलाओं को शादी के नाम पर शादी कर देंगे, इधर नौकरी दिलाएंगे, इस तरह का कारण देकर के, और बचपन में ही शादी करके, जैसे बिहार में बहुत सारे इलाके हैं जहां पर बहुत माने 9 साल 10 साल में शादी में दी जाती है, और शादी के नाम पर कोई आएंगे, कहेंगे कि भाई हमको शादी करके ले जाएंगे, और उनको जाकर के कहीं ब्रोथल या प्रोस्टिट्यूशन की सिचुएशन में ले जाते हैं। तो पॉवर्टी जो है एक बड़ा मुद्दा निकल आ रहा है कि जहां एजुकेशन की कमी है, जहां अवेयरनेस की कमी है, जहां महिलाओं की दर्जा जो कहते हैं, जेंडर का जो स्टेटस है, विमेन का जो स्टेटस जहां कमजोर है, वो सब इलाके जो है वो सब मुद्दा बन जाते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए। इसमें महिलाओं को अगर देखा जाए और या बच्चियों को देखा जाए, उसमें यौन शोषण बहुत ज्यादा प्रचलित है। लेकिन अगर लड़कों को देखा जाए तो चाइल्ड लेबर में लड़कों को बहुत ज्यादा ले जाते हैं। तो यही सब कारण है। और हमारे जो जितने अभी तक स्टडीज हुए हैं, रिसर्च हुए हैं, इसमें यह कहा गया कि बच्चियों को घर में ही बहुत ज्यादा सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है। 70 to 80% जो है कहते हैं स्टडीज में, इस प्रकार का अनेक स्टडीज है जहां पर ये कहते हैं कि भाई बच्चों को घर में ही या तो उनको अब्यूज करते हैं, सेक्सुअली अब्यूज करते हैं, या उनको रेप करते हैं। तो वैसे बच्चे या कमजोर वर्ग के जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब जो है, उनको अधिकतर ब्रॉथल्स में के सिचुएशन में पाया जा रहा है। ये हमारे स्टडीज रिवील करते हैं। थैंक यू मैम। रविकांत साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक समस्या तो ट्रैफिकिंग है, दूसरा एक इमिग्रेशन है, क्या ये दोनों ये दोनों अलग अलग चीजें हैं? इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। नहीं, माइग्रेशन एक अलग चीज़ है, पर फिर भी देखा जाता है कि माइग्रेशन में भी काफ़ी ट्रैफिकिंग हो रही है। काफ़ी समय पे देखा जाता है कि महिलाओं और बच्चों को नौकरी को झांसा दे करके, और उस समय उनकी कंसेंट भी होती है, माँ बाप भी बच्चे दे देते हैं कि अच्छा नौकरी करने के लिए ले जा रहे हैं। पर देखा जाता है कि शहरों में आने के बाद उस कंसेंट खत्म हो जाता है और उनके साथ फ्रॉड हो जाता है, और जब फ्रॉड हो जाता है तो वहाँ ट्रैफिकिंग हो जाता है। तो अनसेफ माइग्रेशन में ट्रैफिकिंग हो रहा है, और देखा गया है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में जो प्रोस्टिट्यूशन के लिए, प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा जो बच्चों को लाया जा रहा है चाइल्ड लेबर के लिए, उन सारे चीज़ों में ये माइग्रेशन का प्रॉब्लम है, जिसमें कि लोगों की वनरेबिलिटी का फायदा उठा करके उनको बोलते हैं कि हम नौकरी और अच्छे अपॉर्चुनिटीज के लिए आपको ले जा रहे हैं, तो और यहाँ पर लाने के बाद उनके साथ सारी चीज़ें गलत होती है। और इस पूरे में चाइल्ड लेबर के लिए हो, फोर्स्ड मैरिजेस के लिए हो, प्रोस्टिट्यूशन के लिए हो, जितने भी चीज़ों के लिए ट्रैफिकिंग हो रही है, सब में माइग्रेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो अनसेफ माइग्रेशन है। थैंक यू सर। रविकांत जी का इस बिंदु पर आपने पूछा इलीगल इमिग्रेशन पर, रविकांत जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया माइग्रेशन और इसका लिंकेज। अच्छा है, बहुत ही अहम मुद्दा है। उस बिंदु पर थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए, इलीगल इमिग्रेशन आप देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल इंडिया, मैं अनएम्प्लॉयड आदमी है, मैं चाहता हूं कि जाए, महिला है, 25 साल की महिला है, मैं चाहता हूं कि हमको दुबई में नौकरी मिल जाए। काफी कोशिश किया, कुछ नहीं मिला। एक आदमी मेरे को बताया कि आप 2 लाख पैसा दे दो, मैं आपको पासपोर्ट किसी दूसरा आदमी के नाम से बना के आपको भिजवा देंगे।
तो मैंने उनको पैसा दे दिया 2 लाख रुपया। मेरे को पता है कि मैं गलत पासपोर्ट में जा रहा हूं, मैं वहां पर गया नौकरी करने के लिए, तो इलीगल इमिग्रेशन हुआ, ट्रैफिकिंग नहीं हुआ। मगर वहां पर कंडीशन क्या था, वहां पहुंच करके कंडीशन नहीं था कि हमको किसी के घर पे डोमेस्टिक काम करना है, सफाई करना है, खाना पकाना है, और कुछ नहीं था। खाना पैसा इतना मिलेगा, 8 घंटा ड्यूटी करना है, रहने के लिए मकान मिलेगा, ये सब कंडीशन था। पहुंचने के 1-2 दिन के बाद या 1 महीने के बाद मैंने देखा मेरा पासपोर्ट ले लिया, मेरा कपड़ा ले लिया, मेरा सब चीज ले लिया, और बोलता है कि तुम रात में इनके साथ सो जाओ, इनके साथ सो जाओ। तो मेरे को एक सेक्सुअल स्लेव बनाया, मेरे को उनके वहां पर एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो गया मेरा। तो उस वक्त ट्रैफिकिंग शुरू हो गया। तो शुरू में मैं आप बोलेंगे कि मैं तो इलीगल इमिग्रेंट हूं, मगर वास्तव में इलीगल इमिग्रेशन की फसाद था। रविकांत साहब ने बताया ना, वही बात है। ट्रैफिकिंग जो है माइग्रेशन के आड़ पर होती है। तो माइग्रेशन का एक मुद्दा देखने में अच्छा लगेगा, हाँ इलीगली इमिग्रेंट है तो उनका भी योगदान है, उनका वो भी उनके मिली भगत है, आप सोचेंगे। मगर वहां जाने के बाद उनको एक्सप्लॉयटेशन इस तरह का होता है, ये वो महिला को मालूम ही नहीं था, तब तो नहीं जाते वो इलीगल इमिग्रेंट जरूर है, मगर इलीगल इमिग्रेशन के लिए उनको आप ब्लेम कर सकते हैं, मगर ट्रैफिकिंग के लिए उस आदमी को ब्लेम करना चाहिए। ये माइग्रेशन सिर्फ इलीगल नहीं है, माइग्रेशन जो है जब अनसेफ रहता है तो वो इलीगल परिस्थिति में उनको पहुंचा देते हैं। माइग्रेशन इज अ राइट, एवरीबडी शुड नो दैट माइग्रेशन, आई हैव अ राइट टू मूव, दैट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। लेकिन वो माइग्रेशन के सिचुएशन में हमारा जैसे हम जानकार नहीं है, तो कहां मेरा पासपोर्ट बनता है, कैसे बनता है, क्या बनता है, तो इसमें एक्सप्लॉयटेशन का गुंजाइश जब बढ़ता है तो वो सेफ मोबिलिटी नहीं हो पा रहा है। सेफ मोबिलिटी ना होने से एक्सप्लॉयटेशन की चांसेस बढ़ जाती है। इसी को हम लोग इलीगल माइग्रेशन, मतलब माइग्रेशन इलीगल नहीं है लेकिन इसको इलीगल बना दिया जाता है। नायक साहब, मैं आपसे जानना चाहेंगे, उसका थोड़ा सवाल है, जो इसी आम आदमी जो प्रोसेस इन्वॉल्व ह्यूमन ट्रैफिकिंग, थोड़ा शुरू से जो स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर होता है उसका थोड़ा प्रोसेस थोड़ा जानकारी देंगे तो अच्छा रहेगा। प्रोसेस इन्वॉल्व इन स्टार्टिंग टू द लास्ट पॉइंट तक। ट्रैफिकिंग इज एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इट्स अ क्राइम ऑफ क्राइम्स, इट्स अ बास्केट ऑफ क्राइम। क्यों बास्केट ऑफ क्राइम है? उसमें बहुत सारे अपराध मिला हुआ है, एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। अब शुरू में आप देखिए, एक बच्ची को या महिला को, एक लड़का को ट्रैफिकिंग किया जाता है, तो सोर्स एरिया से ट्रैफिकिंग होगा, तो सोर्स में उसको आइडेंटिफाई करने वाले कोई पहचानने वाले आदमी है। हर गरीब तो ट्रैफिकिंग नहीं हो सकता है, हर आदमी ट्रैफिकिंग नहीं हो सकता है। एक गांव में अगर 20 बच्चे हैं, उसमें से 5 का ट्रैफिकिंग हुआ, ये 20 में से 5 को किसी ने आइडेंटिफाई कराए, वो वीक है, वल्नरेबल है। मैडम ने बताया वल्नरेबिलिटी फैक्टर्स, वो वल्नरेबिलिटी फैक्टर्स को देखते हुए वहां पर आइडेंटिफिकेशन हुआ, तो आइडेंटिफाई करने वाले इसमें मिला हुआ है। वहां से उनको ले जाने वाले, खरीदने वाले, उनको बेचने वाले, उनको वहां से ट्रांसपोर्ट करने वाले, उनको हार्बरिंग करने वाले, उसको फाइनेंसिंग करने वाले, उसको ले आकर के एक्सप्लॉइट करने वाले, उसको इस तरह का हर प्रक्रिया में सोर्स एरिया से लेके ट्रांसिट एरिया होते हुए डेस्टिनेशन एरिया तक, और डेस्टिनेशन एरिया के आगे भी अपराध क्राइम नहीं होता, खत्म नहीं होता है। डेस्टिनेशन एरिया में एक्सप्लॉयटेशन होता है, वो होते रहता है। तो इसलिए सोर्स, ट्रांसिट और डेस्टिनेशन में जितने आदमी इन्वॉल्व है, जितने संस्था इन्वॉल्व है, जितने लोग इन्वॉल्व है, जितने प्रक्रिया इन्वॉल्व है, ये सब मिलकर के ह्यूमन ट्रैफिकिंग बनते हैं। इसलिए एक कंटिन्यूअस क्राइम है, एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, एक बास्केट ऑफ क्राइम है और क्राइम ऑफ क्राइम्स है। इसमें बोलने में बड़ा अच्छा शब्द है ट्रैफिकिंग, मगर उसके अंदर इतने सारे अपराध मिला जुला के एक बड़ा एक संगठित अपराध, एक ऑर्गेनाइज क्राइम बनता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। किडनैपिंग, अबडक्शन भी एक बहुत बड़ा इसमें कंपोनेंट है इसमें। मैडम, हम आपसे जानना चाहेंगे, what makes people vulnerable to human trafficking and who are the traffickers? Can you kindly throw some light on this? देख, इसका इस ट्रैफिकर्स नहीं, वल्नरेबिलिटी तो पॉवर्टी एक वल्नरेबिलिटी है, और ऐसा सोशल स्टेटस ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन इज अनदर कॉज फॉर वल्नरेबिलिटी। जैसे है कि आजकल हम देखते हैं फीमेल इन्फेंटिसाइड, फीमेल फीटिसाइड, हम सुनते हैं कि यूट्रस में ही बच्चे को खत्म कर दिया जाता है इफ इट इज अ फीमेल, उसको PNDT एक्ट भी है उसमें। तो जब आपको लड़की का कोई वैल्यू नहीं रहता है लेकिन बच के रह जाती है, तो उसको इधर फेंकने के पहले या रखने के पहले आप उसको प्रोस्टिट्यूशन में बेच दीजिए, यही अपराध है। तो इसमें जो है बच्चों का, खासकर लड़कियों का जो स्थिति है, जो आजकल तो इंप्रूव तो कर रहा है, लेकिन अभी भी हमारे सोसाइटी में फीमेल इन्फेंटिसाइड है, फीमेल फीटिसाइड है। तो वो कोई वो पर्सन करके उनको हम वैल्यू ना करके, लड़की है, हमारे बोझ है, हमको डॉरी देना है,
शादी करना है, इनकम नहीं देगी, हमारा लड़का हमको देखभाल करेगा, लड़की नहीं देखभाल करेगी, इस तरह का अगर विचार आपका रहेगा तो डिस्क्रिमिनेशन और सन प्रेफरेंस के वजह से लड़की लोग को इस तरह की स्थिति में पहुंचने की नौबत आ जाती है। और ये विशेषकर मैं यहां कहना चाहती हूं कि कोई भी ब्रॉथल में, जिस सोसाइटी में तो लड़की को आप फीमेल इन्फेंटिसाइड फीटिसाइड करते हैं, कोई भी ब्रॉथल में जो है मदर अपनी बच्ची को वहां पर कभी खत्म नहीं करती है ताकि वो उनका प्रोफेशन वही करे। वहां पे लड़कों की चाहत नहीं है, लड़कियों की चाहत होती है। तो ये हमारे विडंबना है जो हमारे सोसाइटी में, ये एक वल्नरेबिलिटी है। ट्रैफिकर्स कौन है? पहले तो थे कि भाई ये पूरा पुरुष लोग ट्रैफिकर्स माना जाता था, लेकिन आज वो स्थिति बदल रहा है। बदल क्यों रहा है? हम लोग ये देख रहे हैं इसमें विमेन भी ट्रैफिकर्स होते हैं। ये जो कई कोई फैमिली में ये फैमिली एंटरप्राइज है, हस्बैंड वाइफ मिलकर के ये एक सब काम करते हैं। या अगर ब्रॉथल में आप देखिएगा कोई लेडी जो है ब्रॉथल को कंट्रोल करती है, वो भी ट्रैफिकर है, लेकिन वो किस कारण से वहां पर उस काम को कर रही है, ये है कि उसको जब रेस्क्यू करना था या बाहर आना था, कोई उसको स्वीकार करने वाले नहीं थे, उसके फैमिली उसको स्वीकार नहीं किए, उनको इतना स्टिग्मा था, तो सोचा कि भाई यहां पर कहीं रह करके हम जो भी कमाते हैं कमाएंगे। तो वो जो है उम्र बढ़ते बढ़ते उनका एक मालकिन का माने दर्जा मिल जाता है। तो ट्रैफिकर्स इसमें, जैसे नायर साहब ने कहा, ट्रैफिकर्स है जो खरीदते हैं, बेचते हैं, जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, जो पैसा रिक्रूट करते हैं, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं, उसमें मेल भी है, फीमेल भी है। थैंक यू मैम। नायर साहब, मैम आपसे जानना चाहिए रेस्क्यू के मतलब क्या है, रेस्क्यू के बारे में थोड़ा, रेस्क्यू के बारे में थोड़ा जानकारी देंगे तो अच्छा रहेगा। रविकांत जी अभी रेस्क्यू करके आ रहे हैं, तो आप शुरू करें, मैं उसको बताऊंगा। आप करके आ रहे हैं ना। रेस्क्यू ये होता है कि कई बार हम लोगों को काम कर रहे हैं हम लोग फील्ड में और इन्फॉर्मेंट्स बना के रखते हैं। कई इनपुट्स पुलिस से आते हैं, कई इनपुट सोर्स एरियाज से आते हैं, और जब सोर्स एरियाज और इन सब जगह से इनपुट्स आता है तो हम लोग एक रेस्क्यू ऑपरेशन प्लान करते हैं एज पर प्रोटोकॉल जो भारत सरकार ने बनाया है। उस प्रोटोकॉल के तहत महिला ऑफिसर को रखते हैं, एक टीम होती है, सोशल वर्कर होते हैं, और सबको मिला करके एक टीम होता है। और एक ये होता है कि जल्दी से जल्दी रिस्पांस देना, और उसके बाद हम लोग अपने लोकल एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को कांटेक्ट करते हैं। अगर HTU नहीं है वहां पर तो वहां लोकल पुलिस ऑफिसर से कांटेक्ट करते हैं, फिर नोडल ऑफिसर से कांटेक्ट करते हैं। ये सारी चीजों को प्रक्रिया करने के बाद एक टीम गठित होती है। बहुत ही सीक्रेटिव रखना पड़ता है इसको, और उसके बाद ये रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च होते हैं। और उस रेस्क्यू ऑपरेशन में हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि विक्टिम्स के साथ हम अच्छा से बर्ताव करें और विक्टिम्स को निकालें। और उस समय जब रेड के दौरान जब हम लोग कोठों में जाते हैं या प्लेसमेंट एजेंसी में जाते हैं या बच्चों को कई बार ऐसे जगह में देखते हैं, तो पूरा सर्च को अच्छी तरीके से करना पड़ता है। खास करके ब्रॉथल एरियाज में बाहर में तो कोई नहीं दिखेगा, पर जब पुलिस की एंट्री होती है तो सब छुपा दिए जाते हैं। तो सारे एटिक्स में, अलमारी के अंदर में, सब जगह को ठोक ठोक करके देखना पड़ता है कि उसके अंदर, और कई बार हम लोगों को बच्चे अंदर में छिपे हुए मिलते हैं। एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, इसलिए इसमें बहुत लोग लगे हुए हैं और ये हर तरह का अपनाते हैं कि ये बच्चों को उसमें छुपा करके रखें। तो ये इन सारी चीजों का प्रक्रिया अपनाना पड़ता है, और उसके बाद हम लोग उनको, अगर वो बच्चे हैं तो उनको चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने पेश किया जाता है, और एडल्ट हैं तो उनको कोर्ट्स में पेश किया जाता है। सर, आपसे तो दोबारा एक जानना चाहेंगे, आप तो रेस्क्यू में ज्यादा तरफ इन्वॉल्व रहते हैं, क्या ये संभव है रेस्क्यू करने के लिए आपका बिना पुलिस की मदद से आप क्या रेस्क्यू कर सकते हैं? अभी तक आपने ऐसे कोई रेस्क्यू काम किया वो बिना पुलिस की मदद से? कोई भी कारण हो सकेगा, पुलिस का आपका टाइमली नहीं मिल सकता भी है, ऐसे कोई स्थिति में क्या ये संभव है बिना पुलिस के मदद को आप रेस्क्यू ऑपरेशन सक्सेसफुल हो सकता है? एकदम। देखिए, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में अगर एक कोई सिटीजन भी है या कोई सोशल वर्कर है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, दे कैन अंडरटेक इट, बट ज्यादा अच्छा ये होगा कि हम अपने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को साथ रख करके करेंगे। नहीं तो क्या होता है कि कई बार उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, तो क्योंकि एक लीगल इशू होता है एक रेस्क्यू, और रेस्क्यू लीगल और लॉ इन्फोर्समेंट इशू होने के कारण ज्यादातर अच्छा होना चाहिए कि हम इन्वॉल्व करें। पर जरूर सिटीजन्स इसमें रोल प्ले कर सकते हैं। इफ दे कम टू नो अबाउट सर्टेन कि कहीं पर ट्रैफिकिंग सिचुएशन है, एटलीस्ट दे कैन inform NGOs, inform voluntary organization, inform the law enforcement, and then the things can be done. मैं क्लैरिफाई ये भी करना चाहती हूँ
कि अभी जो है ये इस क्राइम को प्राथमिकता देने के लिए यहां पर एमएचए बहुत काम कर रही है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर ये कभी नहीं कह सकते हैं कि मैं कोई रिक्वेस्ट आया तो कि हम नहीं जाएंगे, इनको जाना ही है। लॉ तो है लेकिन हम लोग उसको एनफोर्समेंट में बहुत ध्यान दे रहे हैं। दूसरी बात है, अगर पुलिस को साथ में ले जाने से क्या होता है कि रेस्क्यू करने के बाद तो जो क्राइम होता है उसको एफआईआर तुरंत रजिस्टर होता है, नहीं तो एफआईआर कभी